Good morning, all of you. Today we are going to start our new chapter. The name is Subsidiary Books. Subsidiary Books. First, we have to start with introduction. In the previous chapter, we have studied that the first entry for recording various day-to-day transaction is known as journal entry. डे टू डे जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते थे किसमें करते थे वी पुट वी राइट वी रिकॉर्ड इट इनटू द जर्नल बुक इट्स द ट्रांजेक्शन जो हम रिकॉर्ड करते थे विच इज नोन एज जर्नल एंट्री द बुक इन विच सच जर्नल एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इज नोन एज जर्नल जिस भी बुक में जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होती थी विच इज नोन एज जर्नल. When the number of transactions increase in large number, entering all transactions in one book becomes difficult. Following are the limitations of a journal. जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाता है वैसे ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ते जाते हैं. So this is difficult to record all and every transaction in one book. So here there is some limitations of journal is described. First, while writing entry transaction, the account name has to be mentioned. जब भी हम ट्रांजेक्शन लिखते हैं अकाउंट का नेम लिखना क्या है जरूरी. Second one is an individual posting of each account has debit and credit and hence involves the repetition, journalizing and posting work. अब सारे जो अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजेक्शन में कोई भी दो अकाउंट्स इफेक्ट करता है तो जिस तरह से हम उसकी ट्रांजैक्शन में जर्नल एंट्री लिखते हैं तो सारे अकाउंट के नेम क्या होते जाते हैं रिपीट. जैसे कि परचेज की फिर क्रेडिट परचेज की तो द परचेज डेबिट इज सेम इन द बोथ ट्रांजैक्शन. द जर्नल बिकम बल्की एंड वॉल्यूमिनस एंड बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज. इससे क्या हो जाएगी जर्नल बहुत बड़ी हो जाएगी और डिफिकल्ट टू मैनेज उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा. Such accounting system does not provide the information on a prompt basis. अब prompt basis पे जब भी हमें information चाहिए तो we can't get it immediately. We have to refer all the book one page by page. So this is the time consuming process to know the information on the prompt basis. This is the limitations of journal. It becomes very difficult to implement effective internal control system. अब internal control system भी रखना इससे क्या हो जाएगा difficult. These are the limitations of journal. Because of limitations of journal, subsidiary books are used. In order to overcome these limitations, the journal is subdivided into subsidiary books. Because of the use of computer, these limitations have been neutralized. अब कंप्यूटर से जो जर्नल एंट्री लिखी जाती है तो ये सारी लिमिटेशंस जो है वो नहीं होती. फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन विच आर रिपीटेटिव अ सेपरेट बुक ऑफ जर्नल इज केप्ट. जर्नल एंट्री का क्या है ये सब्सिडरी बुक सब डिवीजन है. जर्नल एंट्री में सारे ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं. देयर आफ्टर वी हैव टू डिवाइड इन इट इनटू द सेपरेट सब्सिडरी बुक्स. For example, credit purchase for credit sales, cash sales, etc. Specific transactions are noted in specific books. अलग अलग ट्रांजेक्शन जैसे कि क्रेडिट परचेज की तो वो सारी एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड हुई, क्रेडिट सेल्स की तो वो सारी एक ही अकाउंट एक ही पेज पे रिकॉर्ड हुई, कैश कोई भी ट्रांजेक्शन किया तो वो एक ही जगह पे रिकॉर्ड हुआ. इससे क्या हो जाएगा प्रॉम्प्ट बेसिस पे वी हैव टू गेट इन्फॉर्मेशन immediately when we need it. Specific transactions are noted in specific books. Such separate books of journal are known as subsidiary books. What is the meaning of subsidiary books? Such separate books which shows the transaction related to the particular account is known as subsidiary book. Meaning of subsidiary book. Subsidiary books refers to the journals kept for specific transaction of similar nature. सब्सिडरी बुक्स क्या है सब्सिडरी बुक रिफर करता है जो जर्नल में लिखा गया है उसको स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन एक ही तरह के सिमिलर नेचर के जो भी ट्रांजैक्शन हो वो एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना विच इज नोन एज सब्सिडरी बुक. Subsidiary books are also known as DE books.
सब्सिडरी बुक्स को डे बुक्स भी बोला जाता है। द अदर नेम ऑफ सब्सिडरी बुक इज डे बुक। अ सेपरेट बुक फॉर ईच सब डिविजन इज मेंटेनिंग। फॉर एग्जाम्पल, for recording all credit purchase transaction, purchase book is prepared, and for recording all credit sales transactions, sales book is prepared. इसे क्या हो जाएगा, सेपरेट बुक फॉर ईच सब डिविजन इज मेंटेन। सेपरेट बुक रखने से क्या हो जाएगा, जर्नल की सारी सब डिविजन हो जाएगी। क्रेडिट सेल्स वाले उसके अकाउंट में, क्रेडिट परचेस वाले उसके अकाउंट में। इससे क्या हो जाएगा, सारे जो ट्रांजेक्शन वो सब डिवाइड हो जाएंगे सिमिलर नेचर के इन द डिफरेंट अकाउंट। अब टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स के कितने टाइप्स हैं? फर्स्ट, मेन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। फर्स्ट, कैश बुक। सेकंड, गुड्स रिलेटेड सब्सिडरी बुक्स। थर्ड वन इज सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स एंड द फोर्थ वन इज जर्नल प्रॉपर। These are the main types of subsidiary books. It have also subtypes of that. First, कैश बुक में क्या होगा, सिंपल कैश बुक। इसमें भी 3 तरह के डिवीजन पड़ेंगे, एक सिंपल, 2 कॉलमनर एंड 3 कॉलमनर। सिंपल में क्या होगा, सिर्फ कैश का कॉलम होगा, कैश ट्रांजेक्शंस। कैश बुक में 3 टाइप्स होंगे, सिंपल, 2 columnar and 3 columnar। जो सिंपल होगा उसमें सारे एक ही कॉलम होंगे कैश ट्रांजैक्शन के। 2 columnar होगा उसमें कैश एंड बैंक 2 कॉलम होंगे। और अगर 3 columnar कैश बुक हुई तो कैश, बैंक एंड डिस्काउंट, ये 3 तरह के कॉलम उसमें होगी। सेकंड वन इज सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स। उसमें कौन कौन सी बुक्स आएंगी, परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। इस तरह से ये सारी आएगी सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स। देयर आफ्टर अनदर पार्ट इज सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स। अब इसमें भी 2 पार्ट्स हैं, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, बुक्स फॉर बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन एंड अनदर बुक्स फॉर बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड। thereafter जर्नल प्रॉपर। ये तीनों में जो रिकॉर्ड नहीं होते ट्रांजैक्शन, those transactions are recorded in journal proper. Those transactions which not covered by above books. Are you getting clear? 4 तरह के मेन टाइप्स हैं। there are 4 main types. First, cash book, subsidiary books for goods, subsidiary books for bills and journal proper. ये हो गए इसके टाइप्स। अब सिंपल कैश बुक में फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस 2 कॉलमनर, कैश बैंक ट्रांजैक्शन और कैश डिस्काउंट ट्रांजैक्शन और बैंक डिस्काउंट ट्रांजैक्शन, कोई भी 2 हो सकते हैं। देयर आफ्टर 3 कॉलमनर, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। ये 3 कॉलम होंगी कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए। अब सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स में क्या होगा, परचेस बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। कैश बुक में सारे कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएंगे। अब सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स जो है, जैसे कि परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, those transaction, only those transaction are recorded which are credit transaction। सब्सिडरी बुक्स में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे। सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स में ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स लाइक परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक। सो परचेस बुक में फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, जो क्रेडिट पे परचेस की होगी वही ट्रांजैक्शन परचेस बुक में रिकॉर्ड होंगे। सिमिलरली सेल्स बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, परचेस रिटर्न बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट परचेस रिटर्न फॉर गुड्स, सेल्स रिटर्न बुक फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। उसके बाद है सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स। बिल्स रिसीवेबल बुक, उसमें जो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन किया होगा वो रिकॉर्ड होगा।
बिल्स पेएबल बुक, जो भी बिल्स पेएबल हमने एक्सेप्ट किया होगा उसके ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड होंगे। एंड द जर्नल प्रॉपर फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन नॉट कवर्ड एल्सवेयर इन अबव सब्सिडरी बुक, जो भी ट्रांजैक्शन अबव मेंशन सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते वो सारे ट्रांजैक्शन किस में रिकॉर्ड होंगे, जर्नल प्रॉपर। क्लियर? नाउ detailed study of each and every subsidiary books will discussed in the next video. The detailed explanation of above mentioned subsidiary books follows. This chapter includes only the explanation of subsidiary books for goods. इस चैप्टर में हम सिर्फ सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बाकी जितने हैं लाइक कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स फॉर बिल्स एंड जर्नल प्रॉपर आर डिस्कस इन द सबसिक्वेंट चैप्टर। आगे इसके अलग अलग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सिर्फ सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स के बारे में ही स्टडी करने वाले हैं। सो इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स एंड सब्सिडरी बुक्स फॉर गुड्स के टाइप्स के बारे में, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, व्हाट आर द फॉर्मेट ऑफ रिकॉर्डिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।